हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? क्या पढ़ें? म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। इससे पिछले लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था। इस लेक्चर में हम म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? क्या हुआ हमारे पास? मान लीजिएगा ये हमारे पास कोई कॉइल है और इसके नेबरिंग में एक और कॉइल रखी है। नाउ मान लीजिएगा पहली कॉइल के अंदर प्राइमरी P1 P2 लिख देता हूं मैं इसको, इसके अंदर करंट चेंज करना चाहता है तो व्हाट विल हैपन? दिस चेंज इन करंट विल बी अपोज्ड बाय इंड्यूसिंग EMF इन नेबरिंग कॉइल। This what happens if current want to change in coil first P1 P2, it is opposed by inducing EMF in the neighboring coil. This property is said to be mutual induction. इस प्रॉपर्टी को क्या बोल करके चलते हैं? This property is said to be mutual induction. If we want to write, how we can write? We can write the property of a pair of coil. What? The property of a pair of coils by virtue of which any change in strength of current in one coil is opposed by inducing EMF in neighboring coil. क्या प्रोसेस है, क्या प्रॉपर्टी है? मान लो प्राइमरी के अंदर करंट चेंज करना चाहता है, दिस विल बी अपोज्ड बाय सेकेंडरी कॉइल। कैसे? सेकेंडरी कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? मान लीजिएगा ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल के अंदर क्या हो गया? फ्लक्स हो गई। अब इस प्राइमरी कॉइल की वजह से सेकेंडरी में भी क्या होगा? फ्लक्स होगा। अगर हमारे पास I चेंज करेगा, व्हेन I विल चेंज डेफिनेटली phi will also change। क्या करेगा आपका? phi भी चेंज करेगा। एंड ड्यू टू दिस चेंज इन phi EMF is induced in the neighboring coil। और EMF इंड्यूस होगा, देन what Lenz's law says? Lenz's law कहता है कि ये आपका EMF का क्या करेगा? अपोज करेगा। EMF का क्या करेगा? EMF अपोज करेगी किसका? कॉज का। What was the basic cause? Basic cause was change in current, strength of current in first coil. So we can say that this is the property of by which the change in current in one coil is opposed by inducing EMF in the neighboring coil. Now we would like to define, अब हम क्या define करना चाहेंगे? Now we would like to define mutual inductance or coefficient of mutual induction। मान लेते हैं हमारे पास there is a coil, I current flows in it, and there is another coil which is placed in the neighborhood. There is another coil which is placed in the neighborhood. When current changing in this coil, definitely, as this will produce the magnetic field, in that magnetic field another coil is placed,
Therefore, magnetic flux will be linked in the neighboring coil. Then it is found that magnetic flux in secondary is directly proportional to current in primary. Magnetic flux in secondary will be directly proportional to current in primary, or phi s is equal to mi. Phi s is equal to MIP, where M is coefficient of mutual induction, where M is coefficient of mutual induction. M क्या है वहां पर? Coefficient of mutual induction. So therefore, we may define coefficient of mutual induction is equal to phi. Coefficient of mutual induction is magnetic flux numerically equal to magnetic flux linked with secondary when unit current flows in primary. When unit current flows in primary. So therefore this is mutual induction. In other way we can define by Faraday's second law of electromagnetic induction, E is equal to d phi upon dt. Therefore E secondary will be equal to d phi s upon dt, or that is Es is equal to minus d upon dt MIP, or Es is equal to minus of M dIP upon dt. Means आपके पास coefficient of mutual induction is minus Es. EMF induced in secondary coil when rate of change of current in primary coil is unity. Rate of change of current in primary coil is unity, but coefficient of mutual induction is EMF induced in secondary coil when rate of change of current in primary coil is unity. और सेम चीज ही है, therefore the unit of coefficient of mutual induction is Henry. Unit of coefficient of mutual induction is Henry. Now we will calculate the mutual induction of certain pairs. Mutual induction of a pair of solenoids wound over each other. But let this is the primary, current is I. This is the secondary, we will calculate phi for this. Current is IP. Let N1 number of turns in primary. Then magnetic field produced along the axis is mu naught N1 divided by A into I. IP कह लीजिएगा. This is the magnetic field produced along the axis. Now what will be the magnetic flux linked with the secondary? Magnetic flux linked for secondary. What? That will be N2B into A. N2 number of turns in the secondary, B secondary के associated magnetic field, A area cos 0 क्योंकि हमने ऐसे लिखा है. तो ये हो गया हमारे पास N2 into mu naught
N1 अपॉन A, N1 अपॉन A नहीं L, सॉरी दिस इज L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आएगा, IP इंटू N2 इंटू A, N2 की जगह N2, B की जगह म्यू नॉट Ni होता है. व्हाट इज B? B इज म्यू नॉट Ni. N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, IP इंटू A. और बाय डेफिनेशन फाई किसके बराबर? MIP के बराबर, दैट इज म्यू नॉट N1 N2 IP A डिवाइडेड बाई L. IP से IP कैंसिल हो गया, therefore mutual induction is M, that is equal to mu naught N1 N2 A divided by L. Now how the coefficient of mutual induction varies? Coefficient of mutual induction किस तरह से आपके पास वेरी करता है? We will understand it. हम इसको समझना चाहेंगे. मान लीजिएगा this is the pair of two coils, this is another pair of two coils, and this is third pair of two coils, same two coils. For this mutual induction is maximum, because due to first one maximum magnetic field has the maximum value for the second, but for this mutual induction will reduce because for this coil phi will be more in comparison to this, because जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करती चली जाएगी? डिक्रीज करती चली जाएगी. तो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डिक्रीज होगा, और फ्लक्स डिक्रीज होगा तो M डिक्रीज होगा. यहां पर आपका होगा ही नहीं. क्यों नहीं होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, बीच के अंदर एंगल किसके बराबर हो गया? 90. तो फ्लक्स किसके बराबर हो गया? 0. तो हम क्या करते हैं कि किस चीज के ऊपर आपका म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करता है? म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करता है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ द टू कॉइल्स, relative position of the two coils, relative orientation of the two coils, medium placed between the two coils, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. और इसके लिए हम एक कपलिंग फैक्टर डिफाइन करके चलते हैं, K that is equal to M upon square root of L1 and square root of L2. इस कॉम्बिनेशन के लिए K की वैल्यू 1 है, we can prove that. और बाद में फिर क्या होती चली जाती है? K की वैल्यू कैसे कैसे रिड्यूस होती चली जाती है इन दोनों कंपोजिशंस के लिए. नेक्स्ट एक और पेयर के लिए बात करते हैं. म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल्स, coplanar coils as shown. क्या है हमारे पास? This is a coil, this is another coil, this has a radius R, this has the radius capital R, right? This has the number of turns N1, this has the number of turns N2. Now what will be the mutual induction of this pair? How we will calculate? Phi is equal to N2BA 2. किसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं? हम अंदर वाली के लिए फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि आसान है. कैसे आसान है? अंदर वाली के लिए मैग्नेटिक फील्ड नियरली यूनिफॉर्म है ड्यू टू आउटर वन, इसलिए हमने बाहर वाले में से करंट फ्लो करवाया और अंदर वाले के लिए क्या क्या फ्लक्स कैलकुलेट किया. तो फाई किसके बराबर हो गया? N2 इंटू N1 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज एरिया ऑफ दिस? एरिया ऑफ दिस इज पाई R स्क्वायर. तो यहां से हमारे पास फाई किसके बराबर हो गया? फाई हो गया हमारे पास M किसके बराबर हो गया? MI किसके बराबर हो गया? म्यू नॉट N1
N2 साथ में पाई भी और फिर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वट 2 कैपिटल आर इंटू आई। आई से आई कैंसिल हो गया तो m किसके बराबर आ गया म्यू नॉट n1 n2 डिवाइडेड बाई 2r इंटू पाई। क्या किया आउटर के अंदर करंट फ्लो करवा करके इनर के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, आसान था। अगर मैं इसके अंदर करंट फ्लो करवाता तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो इसलिए क्या किया मैंने अंदर वाली में से करंट बाहर वाली में से करंट फ्लो करवा दिया और अंदर वाली के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर दिया। सेकेंड वन मान लेते हैं नॉट कोप्लेनर कोएक्सियल है, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ कोएक्सियल कॉइल्स। कोएक्सियल कॉइल्स हैं, एक कॉइल ये है मेरे पास और दूसरी ये है, थोड़ी सी टेढ़ी रख देता हूं। इसका एरिया वेक्टर इसके एक्सेस के साथ कितना एंगल बनाता है थीटा एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, अगेन दिस इज आर, this is x, this has the radius small r. Now what will be the magnetic field produced by first at the location of second? Magnetic field produced by first or the at the location of second किसके बराबर हो गया b इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू I r square divided by r square plus x square raised to the power 3 by 2. This is the formula for magnetic field. x डिस्टेंस के ऊपर r रेडियस की कॉइल ने इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, राइट। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद, magnetic flux linked with phi will be equal to BA cos theta, where theta is angle between magnetic field vector and area vector। तो phi किसके बराबर हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 I r square divided by r square plus x square raised to the power 3 by 2 into pi r square into cos theta। इसी को मैंने किसके बराबर पुट कर दिया, इसी को मैंने पुट कर दिया एम आई के बराबर, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। आर आई से आई कैंसिल हो गया, देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट एम इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r square cos theta divided by r square plus x square 3 by 2। तो इस तरह से हम किसी भी पेयर का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से हम किसी भी पेयर का म्यूचुअल इंडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। करना क्या है, एक कॉइल ने दूसरी कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस किया और उस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से व्हाट वी विल कैलकुलेट फ्लक्स, और उस फ्लक्स को किसके बराबर पुट कर देंगे एम आई के बराबर पुट कर देंगे। लेट वी टेक वन मोर पेयर, लेट वी टेक वन मोर पेयर। What is that pair? This is infinitely long wire and there is a rectangular loop placed in the plane of wire. Loop placed in plane of wire. Now we will calculate mutual induction for the system. इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस। इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस एरिया के लिए, इस एरिया के लिए
कैसे कैलकुलेट करूं? मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, इसलिए बी ए का फार्मूला नहीं लगा सकता। थीटा तो यहां पर भी जीरो ही है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। आपका एरिया वेक्टर भी आप इनवर्ड मान सकते हो या आउटवर्ड मान सकते हो। थीटा आपका 0 या 180 है। फार्मूला बी ए का नहीं लगा सकते, हाँ ये लगाएंगे। तो क्या करूं? आई एम टेकिंग ए स्मॉल स्ट्रिप, I am taking a small strip at a distance x of thickness what? dx. This area is what? इसके लिए हमारे पास d phi किसके बराबर आ गया? d phi आ गया हमारे पास b into dA, that is equal to b into L dx. What is this? L. What is this thickness? Dx. Now this is d phi. What will be phi? Phi will be integration. X varies from where to where? X varies from a to a plus b. A to a plus b. B किसके बराबर? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x इंटू एल डी एक्स। तो फाई किसके बराबर आ गया मेरे पास? म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, I कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई 2 पाई कॉन्स्टेंट, ये एल कांस्टेंट, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए टू ए प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? डी एक्स अपॉन एक्स। तो फाई को मैं एम आई लिख देता हूं। चलो पहले फाई कैलकुलेट कर लेते हैं। फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाई 2 पाई 1 बाई एक्स डी एक्स, मतलब नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स, कहां से कहां तक? ए से लेकर के ए प्लस बी तक। तो हमारे पास फाई किसके बराबर आ गया? फाई आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाई 2 पाई और नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। तो यहां से हमारे पास फाई किसके बराबर? एम आई के बराबर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल डिवाइडेड बाई 2 पाई नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। आई से क्या कैंसिल हो गया? आई कैंसिल हो गया, तो एम किसके बराबर हो गया? म्यू नॉट एल डिवाइडेड बाई 2 पाई नेचुरल लॉगरिथम ऑफ व्हाट? ए प्लस बी अपॉन, right? You can write, you can calculate the mutual induction like this, right? Thank you.